Hello everyone, welcome back in this wonderful session of IELTS Zero to Hero, where I'm taking care of your grammatical portion. Today I'm here with another very interesting and important session for you guys. That's not going to deal with any new topic, but I am just going to revise the entire thing that I have taught you so far in order for you to cover up everything if in case you have missed anything. Okay? So let's get started without wasting any further time, and let's continue and understand what all things we have covered so far with respect to all the grammatical topics that we have dealt so far. ठीक है? तो शुरू करते हैं. So today this is the thing that the revision we are going to do. ठीक है? Moving forward, the very first thing is let's rewind to refined. ठीक है? Let's rewind to refined. In this, I'll be dealing off with all the topics that we have dealt so far. Now, starting off with the very first thing, that is conjunctions. Now, the very first topic that I have dealt was with conjunctions. Let me help you out in knowing what is conjunction, how many parts over there, and what exactly we need to deal with it. ठीक है? चलो शुरू करते हैं. टाइप्स रिकैप एक बारी कर लेते हैं. कंजंक्शंस होते क्या है? कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट कनेक्ट्स वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टुगेदर. ठीक है? कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं. दिस इज व्हाट अ कंजंक्शन दैट वी नो. ठीक है? इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं होती है, इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो डोंट पैनिक. ऐसा कुछ भी नहीं है दैट आई एम गोइंग टू लीव फॉर यू गाइस. आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग. सो कंजंक्शन आर द वर्ड्स दैट कनेक्ट्स two words or two sentences together. Again, sentence type की बात करें तो we are going to have multiple sentence type, जो कि अभी बताना would not be a good idea. I will be covering the entire session of types of sentences differently, so just wait and watch. And yes, अब बात करते हैं कितने टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस होते हैं. तो हमारे पास देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग है, कोरिलेटिव है. ठीक है? We have coordinating conjunction, subordinating conjunctions and correlative conjunctions. अब बात करते हैं coordinating conjunctions क्या होते हैं. देखो coordinating conjunctions वो conjunctions होते हैं जो basically basic level पे काम आते हैं, जो normal sentences को add करने में काम आते हैं, या you can say. ठीक है? चलो अब बात करते हैं further. एक बारी just have a quick look at what exactly are coordinating conjunctions. हेलो 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 हेलो, ये तो चल ही नहीं रहा. हेलो 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 हेलो. क्या हो रहा है? लग रहा है ये चेंज. ठीक है? इसको एक छोटा सा व्हाट वी कैन कॉल इट अ ट्रिक, एक ट्रिक है टू यू नो मेमोराइज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है? क्या ट्रिक है? बेसिकली द ट्रिक इज नोन एज फैन बॉयज. ठीक है? ओके. फैन बॉयज इज बेसिकली फॉर एंड, नॉर, but, or, yet, and so. These are the coordinating conjunctions that we use in our grammatical structure when it comes to joining sentences and different types of sentences and words as well. ठीक है? टॉकिंग अबाउट फर्दर, अगर हम दूसरे काइंड ऑफ कंजंक्शंस की बात करें तो दूसरा कंजंक्शन है हमारे पास दैट इज नोन एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है? दैट इज नोन एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. देखो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होता है वो हम यूज करते हैं, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कनेक्ट डिफरेंट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस विद रिस्पेक्ट टू अ सिचुएशन. ठीक है? Situation as in there are multiple scenario involved. For example, अगर हमें टाइम बताना है, अगर हमें टाइम बताना है, हमें कॉन्ट्रास्ट बताना है, ठीक है, हमें कंडीशनल बताना है,
हमें कंडीशनल बताना है या रिलेटिव बताना है, इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ कंजंक्शन. अब with respect to the scenario, for example, time के लिए we have multiple other conjunctions, for contrast we have other words, for conditional we have other words, and for relative we have other words. So with respect to the demand of the situation, we need to change our conjunctions accordingly. ठीक है? So this is what a subordinating conjunctions look like. Now talking about the third type of conjunctions, इसको हम कहते हैं correlative conjunction. उसको हम क्या कहते हैं? correlative कंजंक्शन. तो हमारा जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, बेसिकली इसके साथ एक रूल अप्लाई होता है दैट कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर मेजरली यूज्ड इन पेयर्स. कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर मेजरली यूज्ड इन पेयर्स. तो इनको हम हमेशा पेयर्स में ही यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बार एग्जाम्पल देख लो, जैसे हम यूज करते हैं ना, ईदर और. अब ईदर और बोल लो, आइदर और बोल लो, नाइदर नॉर बोल लो, या नीदर नॉर बोल लो, वट एवर फील्स गुड टू यू गाइज. ठीक है? एंड वी गॉट नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड. ठीक है? सो या etc. अगेन ऐसा जरूरी नहीं है कि we have only these 4 coordinating conjunctions with us. We have many more of them. It's just that we need to just be a bit careful on dealing with them. ठीक है? चलो अब बात करते हैं फर्दर. तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये हो गया आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये हो गया आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन. ठीक है? तो वी हैव गॉट दीज 3 कंजंक्शंस विद अस. अब हम बात करते हैं, देयर कैन बी मल्टीपल सिनेरियो जब आप इन्हें यूज करोगे. ठीक है? बट एक चीज ध्यान देना कि जब हम कोरिलेटिव कंजंक्शन की बात करते हैं, तो जब भी हम बात कर रहे हैं ईदर और की, तो ईदर और हमेशा साथ में आएगा. ईदर कभी अलग यूज नहीं होता है. अदरवाइज इट्स गोना बी कंसिडर्ड एज अ ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस अगर आप ईदर को अलग से यूज करोगे तो. ठीक है? सो ईदर एंड और में आप ईदर को अलग से यूज नहीं कर सकते हो. इट विल नॉट बी अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस अगर आप सिर्फ ईदर को यूज करोगे. हालांकि और को आप सेपरेटली इन अ सेंटेंस यूज कर सकते हो. ठीक है? कैसे? क्योंकि वो हमारा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पार्ट होता है. यहाँ पे आप देखोगे वी हैव दिस और ओवर हियर. ठीक है? सिमिलरली आप नॉर को आप अलग से यूज कर सकते हो, बट नीदर को आप अलग से यूज नहीं कर सकते हो. अगेन दैट विल बी अ ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस. अगर आपने नीदर यूज किया है तो आप नॉर जरूर यूज करोगे. अगर आपने ईदर यूज किया है तो आप और जरूर यूज करोगे. फर्स्ट चीज. सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज कि जब भी आप नीदर नॉर को यूज करते हो, दैट इज ओनली गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द निगेशन. निगेशन यानी नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप यूज करोगे नीदर नॉर को. पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए आप कभी भी नीदर नॉर यूज नहीं करोगे. So this is something that you need to make sure whenever you are dealing with these kind of conjunctions. ठीक है? So this is all about the conjunctions. I guess I have told you everything. ठीक है? अब बात करते हैं further. हाँ, ठीक है? अब बात करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग हो गया, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव. होल्ड ऑन. ठीक है? एंड यहाँ पे ये इन लिखा हुआ है इन केस. चलो हाँ, अब बात करते हैं फर्दर. तो यूनिक सेंटेंसेस यू मस्ट सबमिट द टास्क इवन इफ इट इज इनकम्प्लीट. नाउ अब यहाँ पे एक चीज देखो जरा. यहाँ पे मैंने बोला है इवन इफ इट इज इनकम्प्लीट. इवन इफ यानी कंडीशनल या यू कैन से कॉन्ट्रास्टिव. यू कैन सबमिट, आप अपने असेसमेंट्स या असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो. अगर वो कंप्लीट नहीं भी है तो भी सबमिट कर सकते हो. तो बेसिकली हम यहाँ पे कौन सा सिनेरियो डिफाइन कर रहे हैं? कंडीशनल सिनेरियो डिफाइन कर रहे हैं by writing even if. And she speaks Spanish as well as Portuguese, as well as is a correlative conjunction. Again, this is what we are going to use. ठीक है? Coming towards quick pop quiz style. Join the sentences. He studied hard, he failed. He studied hard, he failed. Let's join the sentence together and make it a meaningful sentence. So what is going to be the entire answer is, you can write even though he studied hard,
comma, he failed. This is a kind of sentence you can make. और आप क्या बना सकते हो? He studied hard but he failed. ठीक है, ठीक है, चलो. So these are the kind of sentences you can make. Coming towards the next thing, model verb. अब देखो conjunctions we are done with it and let's talk about model verbs. Model verbs, अच्छा hold on. बिफोर दैट मैंने एक और चीज भी पढ़ाई थी विच इज कनेक्टर्स. कनेक्टर्स पता होगा आपको. कनेक्टर्स आर बेसिकली द वर्ड्स दैट आर यू कैन से अ बिट ऑफ लाइक सिनोनिम्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं. आप डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के लिए डिफरेंट कनेक्टर्स यूज करते हो. फॉर एग्जांपल एंड के लिए यू हैव मोर ओवर, फर्दर मोर, दीज काइंड ऑफ कनेक्टर्स एज वेल एज आल्सो दीज आर द कनेक्टर्स. टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्राडिक्शंस, तो उसके लिए जो हमारे पास बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसके लिए you can use on the contrary, on the other hand, though, even though, however. So these are the words that you can use when it comes to connectors. ठीक है, so this is just something that I have already taught you. एक बारी अगर आपको जानना है इसको डीप में, you can definitely go and watch the session so that you can have an idea, and please let me know if you have any query, anything. I'm there to help you out. ठीक है, talking about further, अब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की. ठीक है, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? अच्छा, मॉडल वर्ब्स तो ठीक है, मॉडल वर्ब के बारे में बात करने से पहले एक बारी वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं एंड देन वी आर गोना मूव अहेड विद द मॉडल वर्ब. ठीक है, चलो पहले वर्ब क्या होता है? वर्ड्स दैट शो एक्शन. बच्चों, वर्ड्स दैट शो एक्शन बच्चों वाली चीज है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, और अकरेंस. ठीक है, वर्ड्स दैट शो एक्शन, स्टेट और अकरेंस. ठीक है, कितने टाइप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं हमारे पास? देखो ये सारे टाइप्स है, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं. मेन वर्ब होता है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, ईट, रन, स्लीप, वॉक, प्ले, स्विम. ये सारे जो वर्ब्स होते हैं ये मेन वर्ब होते हैं, बिना किसी एडिशनल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के या बिना किसी एडिशनल ग्रामेटिकल टूल के. टॉकिंग अबाउट फर्दर, हमारे पास एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब. अच्छा, हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं? ये वो वर्ब्स होते हैं जिनके हेल्पिंग वर्ब्स आर दोस वर्ड्स जिनके कोई खुद के मीनिंग नहीं होते. ठीक है, दे डोंट पोजेस देयर ओन मीनिंग, दे आर जस्ट देयर इन ऑर्डर टू हेल्प अ सेंटेंस टू मेक इट मीनिंगफुल. हम वो हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं जो उनकी कोई मीनिंग नहीं होती इंडिविजुअल लेवल पे, हम उन्हें यूज करते हैं इन अ सेंटेंस इन ऑर्डर टू कनेक्ट, और यू कैन से नॉट एग्जैक्टली कनेक्ट, इन ऑर्डर टू मेक देम अ मीनिंगफुल सेंटेंस. ठीक है, टॉकिंग अबाउट फर्दर, तो बेसिकली हमारे पास इज, आर, हैव, डू, was, were, am, ये सारे जो verbs होते हैं helping verbs, उनको हम use करते हैं in a sentence. ठीक है, next we need transitive. Transitive verbs needs an object to complete the sense of the sentence. Transitive verbs जो होते हैं वो verbs होते हैं जिनको एक object चाहिए होता है in order to complete the sense. Sense as in order to complete the sense of a sentence. ठीक है, टॉकिंग अबाउट फर्दर, जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है. ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. टॉकिंग अबाउट इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये वो वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है इन अ सेंटेंस. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट अ स्टेटिव वर्ब. व्हाट इज अ स्टेटिव वर्ब? बिलीव, नो, सीम, नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, transitive verbs are those verbs that are believed, or you can say that are intangible in nature, that cannot be touched, right? But at the same time they work as a verb. Phrasal verb on the other hand talks about a small phrases that are there used to deliver a certain scenario. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है give up. give up का मतलब होता है क्विट करना. ठीक है, गिव अप का मतलब है क्विट करना. लुक इनटू का मतलब होता है क्लियरली स्क्रूटनाइज करना. ठीक है, तो बेसिकली इनको देखकर इनका आप मतलब नहीं निकाल सकते. दे डोंट हैव अ लिटरल मीनिंग, दे आर जस्ट phrases or they are just words that define a certain sentence in an indirect manner. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो, she bakes cookies every Sunday. मेन वर्ब हो गया, bakes आया, मेन वर्ब हो गया. They have been working all day. helping verb plus main verb. ये basically आपको तब समझ में आएगा when I'll be revising the tenses with you. ठीक है, he gave up smoking. phrasal verb. gave up मतलब he has quit smoking. ठीक है,
तो दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू यूज. एंड फ्रेजल वर्ब्स, अगर आप आइल्स के परस्पेक्टिव से ये सेशन देख रहे हो तो फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी 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 हेल्पफुल. आप लोग को कॉन्टिन्यूसली यूज करना चाहिए. आई मीन कॉन्टिन्यूसली क्या, फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहिए टू बी अ बेटर वर्ड, टू यूज अ बेटर वर्ड. In that case, make sure to use them frequently in order to make your sentence more enhanced, or you can say a bit of like, giving it a bit of tint of a good enhanced level of English. So in that case, you can use them. And at the same time, you should use more of like idioms with respect to phrasal verb if I'm talking about. Okay, so yeah, definitely these are going to help you in order to enhance your band score. And yeah, that's all about verbs. अब इसी का पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मॉडल वर्ब, जिसको मैंने बोला था अभी रुकना, आई विल बी टेलिंग यू टॉकिंग अबाउट देम. सो टॉकिंग अबाउट मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब देखो वो वर्ड्स होते हैं, मॉडल वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हो, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हो, सपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हो. You call it anything, whatever you feel like calling you can call it. But modal verb का काम क्या होता है? देखो, मॉडल वर्ब एक ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनकी अपनी खुद की मीनिंग होती है. दे हैव देयर ओन मीनिंग, दे हैव देयर ओन यूसेज विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन. अब हर मॉडल वर्ब के मल्टीपल वर्क्स होते हैं, मतलब हर मॉडल वर्ब बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कैन अबिलिटी के लिए यूज करते हो तो कैन आप परमिशन के लिए भी यूज करते हो, कैन आप पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हो तो कैन ऑफर के लिए भी यूज करते हो. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैन इज हैविंग मल्टीपल यूसेज, राइट. बट बात ये होती है कि इवन दो मॉडल वर्ब इज हैविंग देयर मल्टीपल यूसेज, स्टिल दे हैव देयर ओन you can say a priority usage kind of a thing. ठीक है, उनकी एक प्रायोरिटी यूसेज होती है जो उनके अलावा कोई और डील नहीं कर सकता उस सिचुएशन से. अब ये जो मैं अभी तक जो भी मैंने भूल भुलैया बताई है, अब इसको लेट मी हेल्प यू क्लियर इट आउट, लेट मी हेल्प यू एक्सप्लेन अ बिट बेटर. फंक्शंस जो कवर होते हैं वो होते हैं ऑब्लिगेशन, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी. ठीक है, ये सारे फंक्शंस कवर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉडल वर्ब. अब हमारे पास कितने मॉडल वर्ब होते हैं, एक बार जरा ध्यान से जल्दी से देख लेते हैं कितने मॉडल वर्ब्स होते हैं. देखा जाए लॉजिकली तो यार 10 ही होते हैं. ठीक है, अगर हम मॉडल वर्ब की बात करें ओके 10 होते हैं. पहला कैन, कुड, may, might, will, shall, would, should, ought to, and must. अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास थोड़े और मॉडल वर्ब्स भी होते हैं जो हम एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी यूज करते हैं ना. व्हाट इज एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी? बेसिकली हम उनको अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पहले सुन लो, नीड टू हो गया, बी एबल टू हो गया, और टू इज अगेन, बट या वी कंसिडर इट एज अ मेन मॉडल वर्ब. ठीक है, ये सब हो गया, नीड टू हो गया, वांट टू हो गया. नाउ अगेन फैक्टर्स कि वो हम मॉडल वर्ब तब यूज करते हैं जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते. आई मीन जब हमारे पास मेन मॉडल वर्ब यूज करने का तरीका नहीं होता है तो हम ऑल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं. आप उसको एज अ सब्स्टिट्यूट समझ सकते हो. ठीक है, सो अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सर्टेन सिनेरियोज वेयर यू नीड टू डील विद देम. बट ठीक है, बिफोर मूविंग अहेड एक बारी बस बात कर लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली दीज मॉडल वर्ब्स आर गोइंग टू हेल्प यू विद. कैन इज बेसिकली यूज्ड टू शो अबिलिटी. ठीक है, कैन का काम होता है अबिलिटी दिखाना, केपेबिलिटी दिखाना. ठीक है, कैन का मतलब सकता हूं, अगर इसके आइडेंटिफिकेशन पूछे तो वो होता है सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कैन की वो होती है अबिलिटी भी शो करता है, ये परमिशन भी शो करता है एट अ सर्टेन लेवल. ठीक है, परमिशन हो गया, आपकी पॉसिबिलिटी भी शो करता है टू अ सर्टेन एक्सटेंड. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ऑफर्स एंड ऑल दैट. सो या इट डिपेंड्स. ठीक है, टॉकिंग अबाउट कुड देखो कुड का जो प्रायोरिटी यूसेज होती है वो होती है पास्ट एबिलिटी. अब जैसे कैन, रुको,
पास्ट एबिलिटी, ठीक है। अब देखो जैसे कैन होता है ना, कैन का कैन की जो वो होती है यूसेज होती है, वो होती है एबिलिटी, ठीक है। एबिलिटी यानी कैपेबिलिटी फॉर अ पर्सन टू डू अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क, और या पर्सन हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है, ये हम यूज करते हैं प्रेजेंट फॉर्म में। बट अगर हम कुड की बात करें तो कुड हम यूज करते हैं पास्ट फॉर्म में, ठीक है। पास्ट एबिलिटी हो गई। अच्छा, कुड की एक और जो खासियत होती है वो होती है यू कैन यूज इट फॉर पोलाइट कॉन्वर्जेशन। अगर आपको ये पता करना है कि सबसे पोलाइट लैंग्वेज कौन से मॉडल वर्ब की होती है, तो वो होती है कुड की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाकी मॉडल वर्ब्स की नहीं होती है, वुड की भी वुड की भी होती है, माइट की भी होती है, मे की भी होती है, शुड होती है। मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो हर मॉडल वर्ब की जो एक टोन होता है वो पोलाइट होता है, बट वन ऑफ यू नो लाइक द सुपीरियर ऑफ ऑल ऐसा कह लो कि कुड होता है, ठीक है, ये कह लो। एबिलिटी हो गया, पोलाइट हो गया, और क्या होता है, एंड इट्स लाइक हाइपोथेटिकल में भी आप उसको यूज कर सकते हो फॉर लाइक इमेजिनरी सिचुएशंस, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो। चलो, मे का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी यूसेज होती है वो होती है पॉसिबिलिटी फॉर एन इवेंट टू हैपन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं तो पॉसिबिलिटी मे को लेकर थोड़ी ऐसे आप समझ लो 70% है, मतलब हायर पॉसिबिलिटी है फॉर एन इवेंट टू हैपन। एट द सेम टाइम वही माइट की बात करूं तो माइट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द पास्ट पॉसिबिलिटी, एंड अगर हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी की भी बात करें तो माइट में आ जाता है थोड़ी लो पॉसिबिलिटी विच इज 30%, ऐसे समझ लो। मैंने 70-30 इसलिए लिखा है तो दैट आपको समझ में आए कि किस लेवल की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। वेल ऑन द अदर हैंड टॉक अबाउट द फ्यूचर पर्सपेक्टिव एंड ऑन द इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन, ठीक है, इनफॉर्मल होता है वही। ऑन द अदर हैंड शैल इज ऑल्सो यूज टू शो द फ्यूचर परस्पेक्टिव बट ऑन द फॉर्मल लेवल, वेरी फॉर्मल लेवल पे हम शैल यूज कर सकते हैं, हालांकि अब तो यूज नहीं करते हैं बट स्टिल। would at the same time is used to show a hypothetical situation, हम hypothetical के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम इसको यूज करते हैं, वी यूज would, क्यों, सो दैट हम यहाँ पे हाइपोथेटिकल यूज करते हैं, और किस लिए यूज करते हैं, सडन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, हम इसको यूज करते हैं फॉर सडन डिसीजन मेकिंग एज वेल। क्लियर, आगे बढ़े। शुड हम यूज कर सकते हैं एट द सेम टाइम फॉर एडवाइस, ठीक है। अच्छा, ought to on the other hand we use for moral suggestions, we use for moral suggestions। must is like obligation, it's like a strong suggestion, ऐसे समझ लो। clear, these are the modal verbs that you are going to encounter in your grammatical thing, and again these are very important with respect to your IELTS as well, ठीक है। चलो अब बात करते हैं further। Now let's move to the last but not the least is definitely the tenses. Tenses are again one of the most important portion of your English grammar, which is again I would say a very important topic. चलो इसको देखते हैं कैसे डील करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंसेस होते क्या है, टेंसेस इज इक्वल टू टाइम, टेंसेस इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। टेंसेस हमें टाइम बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द टाइम फॉर एन इवेंट टू हैपन। अब हमारे पास बहुत सारे टेंसेस होते हैं, कितने होते हैं, हमारे पास 3 टाइप के टेंसेस होते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, हमारे पास होता है पास्ट टेंस, और हमारे पास होता ठीक है। अच्छा, इन्हीं टेंस के अगर हम फर्दर बाइफिकेशन करें तो हमारे पास होता है प्रेजेंट टेंस के लिए हमारे पास होता है सिंपल, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये क्लियर। अब ये जो मैंने लिखा है सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, इट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू प्रेजेंट टेंस ओनली। ठीक है, ये जो बाइफिकेशन है ये सारे टेंसेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये तो हो गए हमारे टेंसेस। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास एक और सिनेरियो होता है जब हम बात करते हैं सेंटेंस टाइप की। ठीक है, तो अगर हम सेंटेंस टाइप की बात करें तो हमारे पास होता है पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब जिसमें हम कोई रूल रेगुलेशंस नहीं लगाते हैं, मतलब कोई भी ग्रामेटिकल टूल का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव सेंटेंस, मतलब कि इसके आइडेंटिफिकेशन होता है जब भी हम नॉट लगाते हैं किसी सेंटेंस में तो वो हो जाती है नेगेटिव सेंटेंस, दैट शोज निगेशन। थर्ड होता है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। इसमें हमको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर नोन एज क्वेश्चन सेंटेंसेस। अब हमारे पास सिमिलरली आ जाता है नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो जो हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव आता है, अगेन मतलब इसका होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हमें नॉट भी लगाना है बिकॉज वी हैव नेगेटिव एंड देन ऑफ कोर्स अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। टॉकिंग अबाउट फर्दर वी हैव WH क्वेश्चंस। देखो WH क्वेश्चन सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हम WH वर्ड से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, what, where, how and etc. I'm adding over here. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो नेगेटिव WH क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं उनमें हम नॉट लगा देते हैं। दैट्स हाउ वी मेक WH नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस। सो दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, दिस इज ऑल व्हाट वी टॉक अबाउट व्हेन इट कम्स टू सेंटेंसेस। टॉकिंग अबाउट फर्दर इन द टेंसेस सीरीज आप देखोगे कि मैंने मेजरली चीजें काफी सारी ऐड करके रखी हैं आपके लिए। मैंने बहुत सारी चीजें डिटेल में समझाई है विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर। टेंसेस में अगर मैं बात करूं तो टेंसेस में सबसे ज्यादा आपको जो यूज होता है वो होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब का। तो ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं हमारे पास, देखो हमारे पास बेसिकली 5 होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। बहुत सारे लोग इसको ING फॉर्म भी बोलते हैं एंड बहुत सारे लोग इसको SNES फॉर्म भी बोलते हैं, वॉट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू। ठीक है, ये होता है विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी टेंसेस। हमारे पास डिफरेंट सिनेरियो होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट वी आर गोइंग टू यूज। सिमिलरली अगर मैं सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेंस की बात करूं वो होता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, एंड हमारे पास होता है पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, पास्ट परफेक्ट सिनेरियो, प्रेजेंट परफेक्ट सिनेरियो आर द दीज टू टेंसेस व्हिच आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। देखो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि जब भी कोई सिनेरियो आपका, देखो जब भी कोई इंसिडेंट आपका पास्ट से शुरू हुआ है और वो अभी खत्म हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर हमारे पास ये 3 सिनेरियो हैं, कोई भी सिनेरियो आपका, कोई भी इंसिडेंट आपका पास्ट से शुरू हुआ है और वो कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है कब, नाउ में, मतलब प्रेजेंट में अगर कंप्लीट हो रहा है दैट इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसका पास्ट से रिलेशन है, उसका पास्ट से रिलेशन है, दैट इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वाइल ऑन द अदर हैंड मैंने पहले भी बताया कि अगर परफेक्ट लिखा है किसी टेंस में तो परफेक्ट का मतलब है उसका पास्ट से रिलेशन होना। तो अगर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करूं तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है कोई भी इंसिडेंट, ठीक है, कोई भी इंसिडेंट पास्ट ऑफ पास्ट का हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल जब दो, इसमें हमेशा याद रखना 2 सिनेरियोज एड ऑन होते हैं। ठीक है, 2 सिनेरियोज एड ऑन होते हैं और एक होता है पास्ट का, ठीक है, एक होता है पास्ट, ऐसे समझो एक होता है पास्ट ऑफ पास्ट का, पास्ट ऑफ पास्ट, और एक होता है रीसेंट पास्ट। ठीक है,
तब उनके बीच में हम had के साथ verb की third form लगाते हैं, ठीक है? तो जब भी हम किसी scenario की बात करते हैं, we have a past scenario and we have past of past scenario. That is what we call as a scenario when we are going to deal with it. So basically, this is what the most complicated tenses are going to look like. And yup, that's all, guys. Thank you so much. And this is the interface. If you want to get in touch with our Zero to Hero, DPPs or notes or whatever you feel like, here is the scenario and here is the entire you can say the process that you can get through with your DPPs, and you can practice questions. Okay. And yup, that's all. Thank you so much, everyone. Thank you so much for being here. It has been a wonderful session with you guys. And please let me know if you need any help, any further sessions. And yes, I'll be there to help you out. Okay, then bye bye. Take care. See you in the next session.